मेनी टाइम इट हैपेंस, मार्केट आपके फेवर में जा रहा है बट स्टिल आपका ऑप्शन बाइंग पोजीशन पैसे नहीं बना रहा। कल्प्रिट हियर इज थीटा डीके। तो क्या थीटा डीके एक एज है, इज इट अ ट्रैप और जस्ट अनदर नंबर? चलिए डिकोड करते हैं आज के वीडियो में। So guys, if you have seen our past videos, हमने एक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग कवर किया था, दैट इज द ग्रीक्स। तो जहां पे हमने 4 ग्रीक्स कवर किए थे, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। तो थीटा इज जस्ट वन ऑफ द ग्रीक जो आपका ऑप्शंस का प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है। एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉर थीटा, ऑल अदर ग्रीक्स आर अगेंस्ट यू। तो चलिए डिकोड करते हैं ये थीटा का मिस्ट्री। तो सबसे पहले थीटा का डेफिनेशन क्या है? सो थीटा इज नथिंग बट, आप जब ऑप्शन बाय करते हो उसका एक लिमिटेड वैलिडिटी होता है, दैट इज टिल एक्सपायरी डेट योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो जो प्रीमियम आपने पे किया है ओवर दैट पीरियड ग्रेजुअली रिड्यूस होके जीरो की ओर जाएगा। सो इट डीकेज ऑन डेली बेसिस। तो जो डेली बेसिस का ये टाइम बेस्ड डीके होता है, दैट इज व्हाट द थीटा डीके इज ऑल अबाउट। सो थीटा नंबर टेल्स अस every day what premium will reduce from your option prices. Market कहीं भी जाए, up or down, your premium will reduce by the theta number. So theta is like a melting ice. Every day it melts by a little amount which is irrecoverable. So there are two sides of theta. अगर आप buyer है, theta आपका cost है, theta is your enemy. जो प्रीमियम आपने बाय किया है, वेदर स्टॉक आपके फेवर में जाए या ना जाए, ये वैल्यू डेली बेसिस पे रिड्यूस होगा। सो अगर आप ऑप्शन सेलर है, थीटा इज योर पोटेंशियल प्रॉफिट एंड थीटा इज योर फ्रेंड इफ यू आर ऑप्शन सेलर। सो ये जो डेली थीटा डीके है, डेली बेसिस पे यू कलेक्ट दैट इनकम। व्हेन यू आर ऑप्शन सेलर, आप थीटा के लिए प्ले कर रहे हो, बाकी सारे ग्रीक्स लाइक वेगा, डेल्टा एंड गामा, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट यू। सो लेट्स से आपने 100 रुपीज प्रीमियम पे किया है, there are 10 days to expiry. So क्या डेली बेसिस पे 10 रुपीज डिके होगा फ्रॉम द ऑप्शन वैल्यू? सो सिंपल मैथ्स, राइट? बट इट डजंट वर्क दैट वे। थीटा डिके इज नॉट लीनियर. So when start of the expiry, theta decay is very slow. As we approach expiry, theta decay accelerates. So if at start of the expiry theta decay is 8 rupees per day, gradually it will reach 12 to 13 rupees per day, and as we approach expiry day it will be very high. So can we find some acceleration point जहां से theta decay accelerate होना start करता है? So there is no direct rule to that, but what we have observed that when you are playing a monthly expiry, last 7 to 10 days theta decay is very high, and when you are playing a weekly expiry, last 2 days are sweet spot for theta decay. So can I say when you are close to expiry, that is the opportunity zone for option sellers and that is the risky zone for option buyers. So if you are option seller, theta decay is your friend, but it's not that simple. Let's explore whether theta decay is edge or a trap. There is saying in the option selling market, be the casino owner or be the house. That means option sellers wins every time? Not necessary. But they got very high probability because on daily basis your option premiums are going to decay by a short number. So you can sell it in advance and buy it back later at a lower price. So what is the edge in option selling? Based on historical data, there is an observation that market stays in a range for 65 to 70% of the time. So that means जब market sideways है, when it is not moving in any side, क्या कॉल एंड पुट दोनों में डीके आएगा? यस, दैट इज पॉसिबल. सो टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, अगर आप कॉल एंड पुट दोनों साथ में सेल करें तो आपको दोनों का थीटा डीके मिलेगा, बिकॉज थीटा डीके इज यूनिवर्सल फॉर बोथ कॉल एंड पुट्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जांपल. लेट्स से मैंने 25,900 का कॉल एंड 25,900 का पुट सेल किया है फॉर निफ्टी. आई रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ 121 रुपीज इन कॉल, 83 rupees in put. This is the payoff graph which is depicting that my both side break even is 200 points away because मुझे 200 points का credit receive हुआ है and both side that would be my cushion. Now let's go little deeper. Now combine ये दोनों strike का मुझे कितना theta decay मिल सकता है? Let's look at call का theta is 13 rupees per day
Put का theta is 13 rupees per day. That means 26 rupees is the combined theta for this strategy. तो ये straddle है that is per day going to give me 26 rupees. Now obviously 26 rupees is not constant. So if one day मुझे 26 rupees receive हो रहा है, next day might be 28 or 30 rupees. So अगर market 2 दिन range में रहता है, it is not moving in any direction. So for 2 days theta I can receive is 26 multiplied by 2, which is almost 50 points plus. So that's the edge in theta decay. From this I can observe that theta decay edge कब है? When market is in range. तो मार्केट जब साइडवेज होगा तब थीटा डीके आपके फेवर में वर्क करेगा, बट जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा इन आइदर डायरेक्शन, बाकी जो ग्रीक्स है लाइक वेगा, डेल्टा एंड गामा, दे विल ओवर पावर योर थीटा डीके. सो व्हाट स्मार्ट ट्रेडर्स डू, दे फाइंड द रेंज बाउंड मार्केट एंड देन दे डिप्लॉय द थीटा स्ट्रैटेजीज. जो कॉमन स्ट्रैटेजीज कौन सी है जो थीटा डीके के लिए यूज होती है? फर्स्ट स्ट्रैटेजीज कवर्ड कॉल्स, वेयर आप स्टॉक बाय करते हो एंड यू सेल कॉल अगेंस्ट दैट. शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट ट्रायंगल्स, ये टिपिकल साइडवेज स्ट्रैटेजीज है जहां पर आप एट अ टाइम कॉल एंड पुट दोनों सेल करते हो एंड अगर मार्केट वो रेंज में रहा आपको थीटा डीके का प्रॉफिट मिलेगा. एंड थर्ड स्ट्रैटेजी इज आयरन कॉन्डोर, विच इज जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगल्स, जहां पे आप कॉल एंड पुट तो बेचते ही हो बट उसे हेज करते हो दोनों साइड बाय बाइंग फार ओटीएम कॉल्स एंड पुट्स. सो टू सम अप, रूल इज जब तक आपके थीटा को बाकी ग्रीक्स ओवर पावर नहीं करते, टिल देन यू आर प्रॉफिटेबल इन थीटा डीके स्ट्रैटेजीज. सो दिस विल वर्क इन साइडवेज मार्केट एंड इन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मार्केट डेल्टा विल ऑलवेज ओवर पावर योर थीटा. सो सपोज कोई स्टॉक में आपने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी प्ले किया है एंड इफ स्टॉक इज एक्सप्लोडिंग बाय 5 to 6%, योर थीटा डीके इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल डेल्टा मूव. सो यहां पे आपको लॉस हो सकता है. सो टिल नाउ वी लर्न when theta can provide edge. अब चलिए समझते हैं थीटा कैन बी ट्रैप ऑल्सो एंड क्या सिनारियोज है जहां थीटा कैन ट्रैप अस. अगर आप ऑप्शन बायर है, थीटा इज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट यू. तो आप जब डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं ऑप्शन बाइंग का, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ट्रेंड एंड द टाइमिंग ऑल्सो, बिकॉज आपके ट्रेड लेने के बाद अगर 2 दिन स्टॉक आपके फेवर में नहीं आया, यू विल लूज too much amount in theta. So option buying is always about the timing and the trend. And yeah, hope is not a strategy. Second scenario where theta can trap us is when you are selling options in trending market. मार्केट एक स्पीड में किसी डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है और आप ऑप्शन सेल कर रहे हो. So in this scenario, even gamma and delta is working against you and even sometime IV is also working against you. So in this scenario, losses from delta and vega काफी हाई हो सकते हैं आपके थीटा डीके प्रॉफिट से. तो ये दोनों सिनारियो में हो सकता है आपने साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करके कॉल पुट दोनों बेचे हैं एंड मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंड हो जाए, या दूसरा सिनारियो आपने डायरेक्शनल सेलिंग की है, जो आपका व्यू है बुलिश, आपने पुट बेचा है और मार्केट नीचे आने लगे. इन दैट सिनारियो ऑल्सो आप लॉस कर सकते हो एंड आपके लॉसेस आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से काफी हाई हो सकते हैं. एंड थर्ड सिनारियो व्हेन थीटा कैन ट्रैप अस इज व्हेन जब आपने ऑप्शन सेल किया है जस्ट टू कलेक्ट द थीटा एंड मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी, सम न्यूज, सडनली आईवी बढ़ जाए, देयर इज ह्यूज राइज इन आईवी एंड इन दैट सिनारियो योर ऑप्शन प्रीमियम विल स्पाइक ड्यू टू वेगा इफेक्ट एंड आपके लॉसेस आपके पोटेंशियल प्रॉफिट से काफी हाई हो सकते हैं. सो जस्ट टू समराइज, लेट मी टेल यू इन व्हाट सिनारियोज थीटा इज योर फ्रेंड एंड कौन से सिनारियो में थीटा आपके अगेंस्ट वर्क करता है. So in sideways market, theta is your friend because theta is the main Greek working here. In trending market, selling theta काफी high risk हो सकता है because delta and gamma will overpower theta decay. So there is a high IV environment and IV is falling. In that scenario, theta can be very powerful you because even vega is working for you. Because अगर IV गिर रही है आपको थीटा डीके तो मिलेगा ही, साथ में IV फॉल का भी बेनिफिट मिलेगा. एंड फोर्थ सिनारियो, IV इज लो है बट IVs आर राइजिंग. तो ये सिनारियो ऑप्शन सेलिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज IV अगर राइज होगी आपका लॉस बिकॉज ऑफ IV राइज विल ओवर पावर योर थीटा डीके प्रॉफिट. सो नाउ यू नो व्हाट आर द सिनारियोज जब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए. सो टिल नाउ ये तो क्लियर है, साइडवेज मार्केट में थीटा आपके फेवर में वर्क करेगा.
तो चलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं ट्रेडिंग का। आई टेक यू टू आवर प्लेटफॉर्म एंड विल अंडरस्टैंड साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे पोजीशन बनाना है एंड कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है। तो विल गो टू nubra.io, लेट्स लॉग इन। सो चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे एनालाइज करते हैं वेदर निफ्टी इज इन रेंज, और अगर निफ्टी रेंज बाउंड है तो हम नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट लोड कर लिया है। आई हैव मार्क्ड इमीडिएट हाइज एंड इमीडिएट जो स्विंग लो था वो कनेक्ट करके मुझे एक पैरेलल चैनल मिला एंड आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस करंटली निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटवीन 26,000 एंड 25,750 एंड क्लियरली मार्केट यहां ट्रेंड तो नहीं कर रहा है। दिस आई कैन मेक आउट फ्रॉम द चार्ट्स। सो मैं यहां पे थीटा स्ट्रैटेजीज ले सकता हूं। नाउ लेट्स सी, लेट्स प्लान आवर स्ट्रैटेजीज। सो आई विल गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर में आई विल सिलेक्ट वोलेटाइल स्ट्रैटेजी एंड वहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल मैं बिल्ड कर दूंगा। तो आपने देखा एक क्लिक पे स्ट्रैटेजी बिल्ड हो गया हमारे लिए। यहाँ पे 26,000 का कॉल एंड 26,000 का पुट, ये दोनों सेल कर रहे हैं। टुडे इज एक्सपायरी, सो आई विल गो टू नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी सो दैट हमें एक डिसेंट रेंज मिले। कॉल एंड पुट, सो हमने 26,000 का कॉल 26,000 का पुट सिलेक्ट किया है। वी कैन सी हियर ब्रेक इवन लेवल हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन इज एट 25,680 एंड अपसाइड ब्रेक इवन इज एट 26,300। तो हमें एक डिसेंट कवरेज मिल रहा है, डिसेंट रेंज मिल रहा है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज वैलिड फॉर अ थीटा डीके। जब हम मल्टी लेग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोनों लेग का साथ में एग्जीक्यूट होना। अगर आप मैन्युअली इंडिविजुअल लेग एग्जीक्यूट करेंगे देयर वुड बी सम प्राइस डिफरेंस विच यू विल गेट एवरी टाइम, तो वो अवॉइड करना है। तो यहां से वी कैन क्लिक द ट्रेड बटन एंड पूरा स्ट्रैटेजी एक क्लिक में ट्रेड हो जाएगा, बोथ द लेग्स टुगेदर। So this will save some slippages for you. So let me click trade button. It will ask you once more you want to execute and once you click on place order, दोनों ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। One more thing, ये जो स्ट्रैटेजी आपने एग्जीक्यूट किया है सेम स्ट्रैटेजी आप सेव कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ बास्केट एंड आप इसे चार्ट के फॉर्म में मॉनिटर कर सकते हैं। हाउ, आई विल शो यू। सो यहाँ पे मैंने बास्केट के फॉर्म में स्ट्रैटेजी सेव कर लिया है। इफ आई क्लिक दिस बास्केट I'll get the straddle strategy in form of the chart. Now सबसे important, जब आप मल्टी लेग स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। I'll show you when you trade straddle, because यहाँ पे दो लेग्स है कॉल एंड पुट, हम कंबाइंड प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 320 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हुआ है। यहाँ पे लॉस हमें होगा अगर प्रीमियम बढ़ता है। सो ये 320 से 340 जाएगा, I'll be incurring लॉस। एट सम पॉइंट मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेट्स अज्यूम हम लोग 350 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सो कंबाइंड प्रीमियम ऑफ बोथ द लेग्स इफ क्रॉसेस 350 विल एग्जिट दिस स्ट्रैटेजी। सो वो कैसे लगा सकते हैं? यू कैन नॉट यूज दैट स्टॉप लॉस एनीवेयर, बट ऑन आवर प्लेटफॉर्म यू कैन यूज आवर फ्लेक्सी ऑर्डर्स एंड कंबाइंड प्रीमियम पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेट्स सी हाउ। सो विल अगेन गो हियर, दिस वाज अ सेल स्ट्रैटेजी। सो अब हमें बाय करना पड़ेगा। सो मैंने 26,000 का कॉल 26,000 का पुट बाय करने वाला स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लिया है। आई सेव दिस स्ट्रैटेजी, आई अगेन कम बैक टू वॉच लिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय स्ट्रैटेजी क्रिएट हो चुका है, बट मुझे एग्जीक्यूट कैसे करना है। आई क्लिक ऑन ट्रेड बटन, यू कैन सी यहाँ पे बाय स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आई क्लिक ऑन फ्लेक्सी ऑर्डर्स, आई क्लिक ऑन लिमिट बटन। सो इतनी सिंपल वे में आप स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल चार्ट पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब चलिए आपने 320 में स्ट्रैडल बेचा, बट कहीं पे आपको टारगेट लगाना है। से यू एक्सपेक्ट 280 270 वुड बी ए गुड डिके फॉर फ्यू डेज। सो आप टारगेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू क्लिक द टारगेट प्राइस एंड आपको अपना टारगेट यहाँ पे फीड कर देना है एंड दैट्स इट। जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में प्लेस हो जाएगा। सो गाइस, दिस वाज थीटा डीके फॉर यू। ये वीडियो में हमने समझा थीटा डीके क्या होता है, थीटा डीके एज हमारे लिए कब होता है एंड कब हमारे लिए ट्रैप होता है। वन मोर थिंग, वी ऑल्सो लर्न साइडवेज मार्केट कैसे ढूंढना है एंड कैसे ट्रेड लेना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन कैसे करना है फॉर सैडल चार्ट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे फिट करना है। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन. If you have any query, please put that in the comment section. See you in the next video.